Okay. So hello everyone. This is lecture number 13 of some basic concepts of chemistry. और आज की क्लास में हम जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमको कैसे अप्रोच करना रहता है मोल कंसेप्ट को लेके, ये उसको जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है वो एक्चुअल केमिकल इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो stoichiometry and stoichiometric calculation, we'll be talking about stoichiometry and stoichiometric calculation. तो क्या है जरा ये stoichiometry या stoichiometric calculation क्या चीज है? आइए भाई जरा इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। अनुश्री गुप्ता, हाँ भाई पढ़िए मैम, क्या लिखा हुआ है? The word stoichiometry is derived from two Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure. Stoichiometry deals with the calculation of masses, sometimes volumes also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. Before understanding how to calculate the amounts of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction. Let us consider the combustion of methane. A balanced equation for this reaction is as given below. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Here, methane and dioxygen are called reactants and carbon dioxide and water are called products. Note that all the reactants and the products are gases in the above reaction, and this has been indicated by letter G in the brackets next to its formula. Similarly, in case of solids and liquids, S and L are written respectively. The coefficients 2 for O2 and H2O are called stoichiometric coefficients. Similarly, the coefficient for CH4 and CO2 is 1 in each case. They represent the number of molecules and moles as well, taking part in the reaction or formed in the reaction. Thus, according to the above chemical reaction, 1 mole of CH4 gas reacts with 2 moles of oxygen gas to give 1 mole of CO2 gas and 2 moles of H2O gas. 1 molecule of CH4 gas reacts with 2 molecules of O2 gas to give 1 molecule of CO2 gas and 2 molecules of H2O gas. 22.7 liter of CH4 gas reacts with 45.4 liter of oxygen gas to give 22.7 liter of carbon dioxide gas and 45.4 liter of H2O gas. 16 gram of CH4 gas reacts with 2 into 32 gram of O2 gas to give 44 gram of CO2 gas and 2 into 18 gram of H2O gas. ठीक, लास्ट ये सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है कि मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब देखिए ये जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं, थैंक यू अनुश्री, काफी आपने लंबा पैराग्राफ पढ़ा, काफी ठीक से पढ़ा। ये देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू इम्प्लाई। कंसिडर दिस बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑक्सीजन में बर्न करना। CH4 plus O2 gives me CO2 plus H2। बैलेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों साइड में सब सेम होने चाहिए, तो हमने इसको बैलेंस्ड करके इक्वेशन में लिख भी लिया। तो अब आप ये देखिए कि ये यहाँ पर ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, इक्वेशन भी ये बैलेंस हो गई, ये 2 लिखा हुआ है साइड, लाइक दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑल ऑफ यू एग्री? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक, अब देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक
सिंस दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, हम इसको देख के क्या धीरे धीरे बातें पता कर सकते हैं। पहली बात जो हम बोल सकते हैं, पहली बात जो बोल सकते हैं वो ये है कि CH4 का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल वो कंबाइन करेगा, ऐसे इक्वल टू का साइन लगा दिया है मैंने, बट उसका मतलब है कि कंबाइन कर रहा है, वो कंबाइन करेगा टू मॉलिक्यूल ऑफ O2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। बस इसको देख के कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर रहा है टू गिव मी वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और साथ ही साथ में टू मॉलिक्यूल ऑफ H2। बताइए, ये बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए, अब अगर ये मॉलिक्यूल के लिए ये बात मॉलिक्यूल के लिए लिखी हुई है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं? मैं पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताइए? देखिए क्या आएगा, फिर मैं ये लिखूंगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, ये कर रहे हैं 12 टूजा, फिर कितना हो गया 24 मॉलिक्यूल्स, 24 मॉलिक्यूल ऑफ O2। फिर इधर क्या हो गया 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और फिर इधर क्या हो गया 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब देखिए 12 जहां पर लिखा हुआ है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डजन। 24 को क्या लिख सकता हूं 2 डजन। फिर इस 12 को क्या लिख सकता हूं 1 डजन। फिर इस 24 को क्या लिख सकता हूं 2 डजन। बताइए लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। तो जैसे कि हमने सर 2 डजन, हाँ 24 वो डजन गलत लिख दिया, 24 तो नंबर था, आई शुड हैव रिटन इट 2 डजन। तो जैसे कि 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और जो है वो क्या कहते हैं कि हमने लिख दिया है उसको 2 डजन, ऑन सिमिलर लाइन बिल्कुल इसी तरीके से हम मोल भी बात कर सकते हैं कि ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, इसको मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मोल में ऊपर ही लिख रहा हूं ताकि आप देख सकेंगे, मोल में लिख सकता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 मोल CH4 कंबाइन करेगा 2 मोल O2 के साथ में टू गिव मी 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। बताइए ये चीज समझ में आ रही है? अगर डजन वाली चीज समझ में आई तो मोल वाली चीज समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। यस सर। तो अब इसी चीज को देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये इक्वेशन थी CH4 2O2, अब मैं गैस वगैरह नहीं लिख रहा हूं, वो जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि आप लोग अभी अभी हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है। सपोज करिए, इमेजिन द सिचुएशन कि ऐसा हो जाए कि मेरे पास में इसके 5 मॉलिक्यूल, CH4 के 5 मॉलिक्यूल, और O2 के 14 मॉलिक्यूल। तो अब ये आपस में इनको डाल दिया गया, इनको रिएक्ट करने के लिए कभी चांस दे दिया गया, अच्छा CH4 जाओ तुम O2 से रिएक्ट कर लो। तो अब आप मॉलिक्यूलर लेवल पर ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, और बैलेंस्ड इक्वेशन की नॉलेज को यूज करते हुए आप बताइए कि CH4 के एक मॉलिक्यूल्स को O2 के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी? बताइए। सर 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स की। तो 5 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए O2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे? 10 मॉलिक्यूल्स। 10 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे। तो उन्होंने अपना 10 ले भी लिया,
10 ले भी लिए मॉलिक्यूल्स। तो अब भाई रियान जब इन दोनों को बीकर में डाल दिया गया और कहा कि आपस में रिएक्ट करो, तो 5 मॉलिक्यूल कितने से रिएक्ट करेंगे? 10 molecules. 10 मॉलिक्यूल्स। तो अब जब फिर यहाँ पे 10 तो मॉलिक्यूल्स तो रिएक्ट कर लेंगे, तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, तो अब यहाँ CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे? सर 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे 10 मॉलिक्यूल्स के साथ Sir, में, तो 0. हाँ, एक भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल बचेंगे CH4 के। और O2 Yes, के sir. कितने बचेंगे? 4 molecules. 4 मॉलिक्यूल्स। और CO2 के कितने बनेंगे? Sir, 0. भाई रिएक्शन के बाद का पूछ रहा हूं मैं, बाद में पूछ रहा हूँ। जब CH4 O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 Sir, और 5. H2O बनाएगा ना। 5. हाँ, 5 मॉलिक्यूल। और H2O के कितने बनेंगे? 10. 10 मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, माइक्रो लेवल पे पिक्चर समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर गए और हमने O2 से कहा कि अरे यार O2 तुम यहाँ पर पड़े हुए हो, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया? अरे O2 आप यहीं पर पड़े हुए, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? O2 आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो फिर क्या आंसर होगा बताइए? Sir, CH4 नहीं है. हाँ, CH4 नहीं है, CH4 नहीं है। तो O2 तो कह रहा है कि भैया हम तो जो है वो रिएक्ट करने को तैयार है, मगर हम अकेले थोड़ी रिएक्ट करें, इसमें गलती CH4 की है कि CH4 ही नहीं है यहाँ पे। तो हम तो यहाँ इंतजार करते रहेंगे और CH4 डालोगे तब हम रिएक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 7 मॉलिक्यूल डाल देते, तो 7 को 14 चाहिए होते, पूरे लोग रिएक्ट कर जाते। बट जब CH4, अगर हम यहाँ पर डांटने लग गए रिएक्शन में कि देखो O2 तुम यहीं पड़े हुए हो, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो O2 साफ साफ बोल देगा कि सर ये मेरी गलती नहीं है, यहाँ गलती किसकी है? Methane, CH4. मिथेन की, CH4 की। तो रिएक्शन होने के बाद में जो चीज बची रह जाए, जो चीज रिमेनिंग अमाउंट में बची रह जाए, तो जो चीज रिमेनिंग रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? Excessive agent, reagent. एक्सेस रिएजेंट। और जो चीज पूरी खत्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज खत्म हो जाए वो चीज एक्सेस रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट और चीज बची रह जाए वो एक्सेस रिएजेंट। ठीक, अब देखिए वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, ठीक, छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल, कि सपोज करिए कि मेरी आदत है कि भाई हमें छोले जो है वो ज्यादा खाना पसंद है, तो मैं पूरे एक भटूरे के साथ में 1 प्लेट छोले खा जाता हूँ। पूरे एक भटूरे के साथ में मैं 1 प्लेट छोले खाता हूँ। यही रूल है, मतलब कि मुझे अगर 1 भटूरा मिल रहा है तो मुझे 1 प्लेट छोले चाहिए पूरे खाने के लिए, तभी मैं खाऊंगा। उससे कम होंगे नहीं खाऊंगा। खाली भटूरे भी नहीं खाऊंगा, खाली छोले भी नहीं खाऊंगा, मुझे भटूरे और छोले साथ में चाहिए। तो अब अगर मुझको सपोज करिए 2 प्लेट छोले मिले और 2 प्लेट भटूरे मिले, 2 प्लेट छोले 2 प्लेट भटूरे, तो मैं, और मुझे बहुत भूख लगती है, मैं कितना भी खा सकता हूँ, तो मैं दोनों खा जाऊंगा या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. लोग खा जाएंगे या नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब ये बताइए 3 प्लेट छोले मिलने और 2 प्लेट भटूरे मिलने, तो भी मैं कितने भटूरे खाऊंगा? तो 2 भटूरे ही खाऊंगा। हाँ भाई श्लोक, ये बात समझ में आ रही है? 2 भटूरे खाऊंगा। यस सर। क्यों? क्योंकि सर भटूरे सर, क्योंकि छोले एक्सेस में लेकिन भटूरे कम है। हाँ, अगर 4 प्लेट छोले मिलने और 5 भटूरे मिलने तो क्या होगा? कितने प्लेट छोले, कितने क्या खाऊंगा, कितने भटूरे खाऊंगा? सर 4 भटूरे। तब भी 4 ही खाऊंगा। क्यों? 1 भटूरा छोड़ दूंगा, मैं 1 भटूरा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं खाने का हमने रूल बनाया हुआ है 1 प्लेट छोले के साथ में क्या चाहिए? 1 भटूरा। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. हाँ भाई श्लोक, बात समझ में आई? यस सर। आप खा लेंगे 4 प्लेट भटूरे, खा लेंगे 4 भटूरे खा लेंगे आप? नहीं सर। क्यों? सर खा नहीं पाएंगे। खा नहीं पाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं, खाइएगा खाइएगा, ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या है भाई लिमिटिंग रिएजेंट? क्या चीज है लिमिटिंग रिएजेंट? क्या है? ओके, हाँ भाई अनुश्री पढ़िए, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, पढ़िए।
the reactant which is completely consumed in the reaction and limits the amount of product being formed is called limiting reagent. The other reactant which is not completely consumed is called excess reagent. चलिए, और लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो पढ़िए मैम, सबसे इंपॉर्टेंट Concept of limiting reagent is only applicable for balanced chemical equations. जी, तो अब आइए यहाँ भी आप भी हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और हेडिंग डालने के बाद पहले ही गलती से बचना है, जब हेडिंग डाल लेंगे तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, वहां पर मेरे पास तो इधर जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लागू है एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लिख लिया? ये लिख लिया? कंसेप्ट यस सर, लागू है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। अब इससे पहले कि हम इस पे जाएं, मगर बेसिक डेफिनेशन पहले लिखिए, तब खूब सारे इलस्ट्रेशन करेंगे। लिमिटिंग रीएजेंट की डेफिनेशन लिखिए, जैसे भाई अरियान आपसे पूछा था वो CO2 और O2 वाले एग्जाम्पल में, पिछला वाला CH4O2, वहां जो पूरा पूरा खत्म हो गया था और जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाया था, तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन था बताइए? CH4 क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल था, O2 तो बचा रह गया था ना। O2 कह रहा था भैया हमारी क्या गलती है यार, तुम CH4 लेकर आओ तो हम रिएक्ट कर लेंगे। तो जो बेचारा बचा रह जाए वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट। और जो पूरा पूरा खत्म हो जाए जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाए, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? यस सर। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिए लिमिटिंग रिएजेंट की। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Richa Pandey, can you hear me? Yes, sir. Great. चलिए Done. ठीक, लास्ट ये आई गेस लिख ली होगी ये वाली बात कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? Only for balanced chemical equation. ओनली फॉर, ये ना भूलें, ये कंसेप्ट लगाने में भी यहाँ पर नहीं भूलें कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है? अब जैसे एक नॉर्मल सा सवाल, अगर हम एक प्लेट भटूरे एक प्लेट छोले ही खा पाते हैं, और अगर नया भटूरे चाहिए तो पूरी पूरी प्लेट चाहिए छोले की। अब जैसे मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, चार प्लेट छोले 5 भटूरे, तब भी मैं 4 खा पाया। तो हाँ भाई, अब बताइए अभयवासिनी, यार लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बताइए? छोले होंगे या भटूरे? छोले। क्यों सर? क्योंकि वो खत्म हो गए। हाँ, वो खत्म हो गए और
उसी की गलती थी जो कि एक प्लेट भटूरे बचे रह गए, ठीक है ना। अगर हम आ गए और कहने लगे देखो भटूरे वेस्ट हो गए यार, रखे हुए हैं भटूरे, तुम्हें खाया क्यों नहीं गया, तो भटूरे बोलेंगे हमारी गलती नहीं है, छोले खत्म हो गए थे, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो अब यहीं पर ये देखिए, ऐसे समझना छोले भटूरे की फॉर्म में या फिर ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा एक चीज और ये देखिए रैयान आपसे ही पूछूंगा क्योंकि पहले भी आप ही से पूछा हुआ था। वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो क्या है, वो वाली बात क्या है, वो बात ये है, ये देखिए कि अगर मैं प्रोडक्ट की साइड में पूछूं CO2 या H2O, ये वाली चीज पूछूं अगर मैं CO2 या H2O, तो आप देखिए CO2 के 5 मॉलिक्यूल्स, H2O के 10 मॉलिक्यूल्स, अगर मैं ये वाली चीज पूछूं तो इस चीज को आपको समझना होगा कि ये 5 ही मॉलिक्यूल क्यों बने, ये 5 ही मॉलिक्यूल क्यों बने। अगर हम मान लीजिए कि हम ये बोल रहे हैं कि अरे यहाँ 14 लिए थे, तो या जो है वो यहाँ पर भी 14 बनने चाहिए थे क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स 2 देते हैं, या यहाँ 2 के आधे 1 होते हैं तो 14 का आधा 7 बनना चाहिए था। ये 5 ही क्यों बने, 7 क्यों नहीं बने, 14 क्यों नहीं बने, तो क्या आंसर होगा बताइए। सर बिकॉज सर जिस रेशियो में रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेंगे उसी में प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर आप ये बोल रहे हैं तो उस हिसाब से सोचिए कि भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप जो बोलना चाह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं देखो यहाँ 2 थे तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ जब 14 थे तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 14। बट सर हमारे पास इथेन कम है ना, वो मीथेन कम है ना। हाँ मीथेन कम है, तो अब स्टेटमेंट तो आपको लिख दिया, मगर आप उस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना यहाँ पे, वो लिमिटिंग रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ये देखिए फिर दोबारा से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म, यस सर। यानी जो प्रोडक्ट बना है, अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बना कि वो यस 5 सर। ही मॉलिक्यूल बने जबकि बन 7 सकते थे, 10 ही मॉलिक्यूल बने जबकि बन 14 सकते थे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट बात, मैं ऐसी टाइम पास करके बता रहा हूँ, मजाक मजाक में बता रहा हूँ, मगर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई या नहीं। यस सर। चलिए अब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसमें क्या था सर, इन दोनों का सर रेशियो सेम क्यों रहा? नहीं रेशियो सेम की बात नहीं है सर, हम जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई थी आपको, एक बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन थी, तो बैलेंस्ड इक्वेशन से ही हम तो इस टाइप की बात कर रहे थे कि यार जब जो है वो मतलब हम यहाँ पर नीचे वाली सिचुएशन देख के बोल रहे थे, ऐसा पूछना चाह रहे थे आपसे कि देखिए जब यहाँ पर हमने 14 मॉलिक्यूल लिए हैं तो H2O के भी हमको 14 मॉलिक्यूल मिलने चाहिए थे, मैं ये पूछना चाह रहा था, मगर मिले कितने, 10। तो वो पूछना चाह रहा था कि यार मिलने तो 14 चाहिए थे, मिले 10, तो ऐसा क्यों हुआ। जी सर। आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। सर क्योंकि इथेन कम था। हाँ इथेन कम था, तो यानी ये गड़बड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CH4 इथेन। तो जो भी गड़बड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी गड़बड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आइए एक और आसान सवाल करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब देखिए मैंने इसके 60 मॉलिक्यूल्स लिए और इसके 150 मॉलिक्यूल्स लिए,
तो अब आपसे वही पूछा गया है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, find number of molecules of ammonia formed, अमोनिया बोलते हैं NH3 को, और थर्ड नंबर पे molecules of excess reagent left over। बताइए भाई, आसान क्वेश्चन है और किया जा सकता है, जल्दी सवाल लिखिए और करिए। सर लिमिटिंग रिएजेंट तो सर H2 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2 है। अच्छा चलिए। और सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के 120 होंगे। अच्छा चलिए देखते हैं बाकी जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, फिर बताइए, जल्दी से करिए, बताइए, सवाल लिखिए, जल्दी से करिए, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन किया जा सकता है, करिए। सर लिमिटिंग रिएजेंट N2 है। अच्छा और सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया सर 40 हो जाएंगे, 40 मोल्स। हाँ? एंड सर थर्ड वाला निकाल रहे हैं। दृश्या मैम, क्वेश्चन पढ़ा दृश्या? जी सर। मैम, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। सर N2। N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दृश्या का आंसर देखते हैं। यहाँ पे दृश्या ने आंसर दिया है N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अमोनिया के? सर 150 आ रहा है। 150 आ रहा है। ओके मैम। और एक्सेस रिएजेंट जो है वो क्या कहते हैं, जो कि बचा रह गया, कितने? श्लोक, श्लोक आवाज आ रही है? यस सर। बताइए श्लोक। सर आप बताइए। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 100 और सर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आर लेफ्ट। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आर लेफ्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ भाई दृश्या, दृश्या ये बताइए कि एक बहुत ध्यान से सुनिए दृश्या, ये इज, डू यू एग्री दैट दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन? जी सर। तो बस वही जल्दबाजी में आंसर देना, सिर्फ जल्दी में आंसर देना, गलती आपको पकड़ में भी आ गई अपनी। इफ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, देन if I give this statement, do you endorse this statement that one molecule of N2 ये कंबाइन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2? या ये स्टेटमेंट से आप एग्री कर रही हैं? एक मॉलिक्यूल N2 को कंबाइन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ में, ये एग्री कर रही हैं? यस सर। To give me 2 molecule of अमोनिया। बहुत अच्छी बात है। तो मैम जब एक मॉलिक्यूल N2 को 3 मॉलिक्यूल H2 की जरूरत है, तो 60 मॉलिक्यूल N2 को कितने मॉलिक्यूल H2 की जरूरत होगी? 180। 180। तो अब आप ये बताइए कि 180 है? नो सर। तो अब फिर गलती किसकी है? छोले की गलती है, भटूरे की गलती है, N2 की गलती है, H2 की गलती है? H2 की। तो जिसकी गलती होती है, जिसकी गलती होती है वही क्या कहलाता है? जिसकी गलती होती है वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया।
जिसकी गलती, आपको ये 150 और 60 देख के बात नहीं करनी है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट के लिए किस पे ध्यान देना होगा बताइए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल, तो रिक्वायरमेंट देखी ना, एक को 3 चाहिए तो 60 को 180 चाहिए होंगे या नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब आप अगर ये हो गया, तब फिर दोबारा से सभी लोगों के लिए मैं ये एक वेकअप कॉल है। एक ही बच्चे ने सही आंसर बताया, ठीक, बताइए जल्दी से दोबारा करिए क्वेश्चन, जल्दी से दोबारा करिए, जल्दी दोबारा करिए। बात मेरी समझ में आई? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दृश्य, बात समझ में आई? यस सर। टेस्ट कब है दृश्य अगला? नेक्स्ट संडे। कमिंग संडे। चलिए 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 जल्दी से करिए। लिमिटिंग रिएजेंट बताइए कौन है? हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। H2। और वही डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बना, कितना बना अमोनिया सर? 100 मॉलिक्यूल्स। 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल। एक्सेस रिएजेंट N2 कितने मॉलिक्यूल बचे रह गए? सर 10। 50 मॉलिक्यूल्स ने करा। हाँ, आप यही पे समझना है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। यही आपको ये वाली बात समझनी है कि ऐसा टेंशन नहीं लेना कि अरे इसके तो 150 थे तो यही ज्यादा होगा, इसके तो 60 थे तो यही लिमिटिंग होगा। नहीं नहीं नहीं, जरूरत कितनी है वो देखा जाएगा। और जरूरत कौन बताएगा हमको, जरूरत कौन आइडेंटिफाई करवाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, नाउ क्लियर। सारे बच्चों को आ रही है? रिचा पांडे, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, सो अब ये देखिए ये हाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया? अनुश्री, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ये देखिए ये कैसे आया। 150 मॉलिक्यूल्स, जब 3 मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो 150 मॉलिक्यूल्स को कितने मॉलिक्यूल्स N2 चाहिए होंगे बताइए? जब 3 को 1 चाहिए तो 150 को कितने चाहिए होंगे? 50 मॉलिक्यूल्स। तो 50 से तो ज्यादा ही है, तो 50 मॉलिक्यूल ले लो, तब भी 10 बचे रह जाएंगे। तो जो बचा रह गया वही तो एक्सेस रिएजेंट होगा या नहीं? और जब 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो 150 उसका फिर 2/3 बनाएंगे। तो जब 3 जो है वो 2 बना रहे हैं तो एक जो है वो 2/3 बनाएगा, और तब 150 जो है वो 2/3 इंटू 150 बनाएगा। और 2/3 इंटू 150 कितना हो गया? 100। 100 तो यानी 100 मॉलिक्यूल NH3 के बनेंगे, N2 बचा रह जाएगा, यानी N2 एक्सेस रिएजेंट है। अब आपको ये देख के घबराना नहीं, अरे उसके तो 60 थे, उसके 150 थे, वो कैसे लिमिटिंग हो सकता है, वो कैसे एक्सेस हो सकता है? अरे इसी के तो ज्यादा है यार, इसके तो कम है, तो ये लिमिटिंग होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, 60 150 से मतलब नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट देखनी है। हमें रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन में किसकी कितनी जरूरत थी। उसके हिसाब से पता चलेगा कि किसकी कितनी जरूरत थी, कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। मेरी बात समझ में आई? सर ये सेकंड पार्ट दोबारा कीजिए। सर ये देखिए इक्वेशन, देखिए इक्वेशन सेकंड पार्ट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। यस सर। ये देखिए सर, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पता चल गया आपको? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे? सर H2 के कितने मॉलिक्यूल, वो और जो कि पूरा कंज्यूम हो जाएगा, H2 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? सर ये 60 थे ना सर, ये तो 30 में सर 180 यूज सवाल होंगे तो सर। पढ़िए सर, सवाल तो देखिए ना सर, सवाल ही नहीं लिखा होगा आपने अभी तक। लिख लिया सर, कर लिया। तो H2 के कितने थे सर जी बताइए? तो 150 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, N2 के कितने थे सर जी? तो 60। तो H2 के 150, N2 के 60। तो अब ये देखिए N2 के 60, H2 के 150। तो अब इसमें देखिए कि 150 को रिएक्ट करने के लिए कितने N2 की जरूरत है? 50 की। तो यहां तो 50 से ज्यादा पड़े हुए हैं, तो यानी 50 विल रिएक्ट।
ठीक, 50 molecules will react and 10 will remain. ये बात समझ रहे हैं या नहीं? Yes sir. और यहाँ पे तो 0 will remain. बताइए. Yes sir. ठीक, अब ये देखिए, अगर ये लिखा हुआ है तो अब लिमिटिंग रिएजेंट ही फैसला करेगा. जब 3 मॉलिक्यूल H2 के NH3 के कितने मॉलिक्यूल दे रहे थे, मतलब साथ में N2 भी कंबाइन कर रहा था, मगर NH3 के कितने दे रहे थे? 2 NH3 2. अब अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 मॉलिक्यूल H2 का NH3 के कितने देगा? 2/3. और फिर मैं 150 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 150 मॉलिक्यूल H2 के NH3 के कितने देंगे? ये कितना हो गया बताइए? 100. वही तो हम भी कह रहे हैं. Yes sir, आ गया समझ. ठीक, बताइए समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा ग्रेडेशन ऊपर ले जाते हैं. अब ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई? सब लोगों ने लिखी? बताइए, कैन वी मूव अहेड? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज. डोंट रिमेन silent. If you have any kind of doubt, then please do let me know. Can we move ahead? Yes sir. Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब ये देखिए, वो सेम क्वेश्चन टाइप के का क्वेश्चन है, बट हमने मॉलिक्यूल से हटके बाद मास में कर दिए, ताकि जरा देखें कि भाई किसके पास में जरा ग्रिप है. तो क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन पढ़िए. एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे सामने है. क्या क्वेश्चन है? हाँ भाई मयंक, क्वेश्चन पढ़िए. 3 grams of H2 react with 28 grams of O2 to give H2O. Identify limiting agent, if any. Calculate amount of water formed. Calculate amount of excess reagent, leftover reagent. हाँ, एक्सेस रिएजेंट का एक और नाम क्या है? जो चीज बची रह जाए. तो एक्सेस रिएजेंट का एक और नाम क्या है? कॉपी में लिख लेंगे. एक्सेस रिएजेंट का एक और नाम क्या है? लेफ्ट ओवर रिएजेंट. लेफ्ट ओवर रिएजेंट. इस इक्वेशन के लिए बात हो रही है, इस इक्वेशन के लिए बात हो रही है. तो करिए. अब यहाँ पर मैंने चालाकी ये दिखाई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में तो हर कोई सोच ले रहा था, बट यहाँ पे मैंने मास के टर्म में सोचना ही होंगे. ज्यादातर सवाल तो ऐसे ही होंगे. चलिए, हो गया सर. चलिए बाकी लोग भी अभी कर लें. आंसर बताएंगे. आंसर बताइए मैम. सर लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन. ठीक. और सर वाटर फॉर्म हो रहा है 27 ग्राम्स. ठीक. और एक्सेस रिएजेंट जो बचा हुआ है 4 ग्राम्स. एक्सेस रिएजेंट कितना है मैम? 4 ग्राम्स. 4 ग्राम. ओके मैम, ओके.
ओके मोस्ट प्रॉब्ली आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लें भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बताइए बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए प्लीज। यस सर। चलिए, कैसे अप्रोच होगी भाई इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, कैसे करना होगा? हाँ भाई दीपाली बताइए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सर पहले तो देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। सब लोगों को ध्यान देना है कि पहले तो देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है यानी, बहुत काम की बात बताई है, बहुत काम की बात बताई है कि पहले तो देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि सर लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एप्लीकेबल रहता है। Great answer. Because the concept of limiting reagent is only applicable for a balanced chemical equation. That is why. ठीक, आगे बताइए। सर आगे मुझसे हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम मिलके करते हैं, डोंट वरी। देखिए ये एक इक्वेशन है बैलेंस्ड, हम बोल सकते हैं। यस सर। अब अगर देखिए मोल के लेवल पर लगाएं हम, वैसे तो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगर Yes, मोल sir. के लेवल पर लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि दो मोल हाइड्रोजन के वो उनको कंबाइन करने के लिए चाहिए एक मोल ऑक्सीजन, और वो मिलके क्या बनाएंगे? 2 moles of water. 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो मैम 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4.
एक 4 मोल grams, O2 का मास कितना होगा? 32 grams, और फिर वो जो पानी बनाएंगे वो कितना होगा? 36 grams. ठीक, तो अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम आगे अप्रोच करेंगे कि 4 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए 36 ग्राम देने के लिए। ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमको कहाँ से मिल रही है? ठीक, 4 ग्राम्स 32 ग्राम्स दे रहे हैं 36 ग्राम। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन तो मैम हमको कहाँ से मिल रही है? इक्वेशन से, राइट? Yes, sir. क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, वो तो हमको कोई इंफॉर्मेशन तो इक्वेशन देख के निकालनी होगी। अब Yes, sir. यहाँ से हम जो है वो क्या कहते हैं कि अपना अप्रोच स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 से डिवाइड कर दें तो 1 ग्राम H2 combined with 8 grams of O2 to give me 9 grams of water. Water. ये कैसे लेकर आया मैंने? ऊपर वाली पूरी इक्वेशन 4 को किससे डिवाइड कर? 4 से से डिवाइड divide कर दी. Yes, sir. 1 ग्राम 8 ग्राम गिव मी 9 ग्राम। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा? 3 ग्राम्स 24 ग्राम्स गिव्स मी 27 grams of 27 water. ग्राम। अब देखिए ऐसा ये अगर आप कोई ये सोच रहा है कि भाई ऐसा हमने क्यों किया, वो जानबूझ के किया क्योंकि मुझे यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा एक्चुअली में कितनी लेकर आनी थी? 3 ग्राम। क्योंकि मैं 3 देखना चाहता था कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो बताइए 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? 28 grams. नहीं नहीं नहीं, ये तो मैम गिवन है 28 ग्राम। जरूरत कितने की है? जरूरत कितने की है ये देखिए, 24 grams. 24 ग्राम। और लिया हुआ कितना? ये हमें सवाल में कितना गिवन है? 28 ग्राम। 28 grams. तो 3 ग्राम 24 के साथ कंबाइन कर जाएगा तो वही अनुश्री ने जो फिर बताया कि कितना बचा रह जाएगा, बताइए? 4 grams. 4 ग्राम। तो जो बचा रह गया मैम वही क्या है? Excess reagent. ठीक, और 3 ग्राम ने ही डिसाइड किया कि पानी कितना बनेगा। बाकी 24 ग्राम के साथ कंबाइन करके तो कितना पानी बना? 27 grams. अगर हम पानी से पूछेंगे पानी आप और भी तो बन सकते थे। ऑक्सीजन से पूछें यार ऑक्सीजन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम 4 ग्राम पड़े हुए हो, तुमने और रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो ऑक्सीजन बोलेगा कि हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है? वाटर लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन ज्यादा है एक्सेस रिएजेंट। मैम वाटर नहीं, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सॉरी सर, हाइड्रोजन। ठीक, तो बताइए बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। चलिए चलिए, तो अब ये देखिए अप्रोच आप लोग देखे होंगे, इसी अप्रोच पे हम काफी सारे सवाल करेंगे। तो मैंने कैसे अप्रोच किया है उसको नोट डाउन करिए प्लीज। जो जो हमने अप्रोच किया है उसको नोट डाउन करिए। अगर जो है वो बहुत से लोगों, जब तक आप बैलेंस्ड इक्वेशन से काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो एक अप्रोच हमने बताई। आई होप अब जो बाकी के सवाल होंगे वो ऐसे ही होंगे। अनुश्री आपने ऐसे ही किया था? यस सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ बताइए बताइए बताइए। सर ये पूछना था, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो क्या उसे पहले होल में चेंज करेंगे? कोई जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी करके लिख सकते हैं सर। मोल्स के फ्रैक्शन तो हो ही सकते हैं ना। अगर अगर आप मान लीजिए मार्केट में आके बोल रहे हैं आधा दर्जन सेब दे दीजिए, आपको कितने सेब देगा वो? सर 6। हाँ, तो वो आपने तो फ्रैक्शन में बोला। आप समझ रहे हैं ना? यस सर। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप मोल्स में डील कर रहे होंगे तो मोल्स का फ्रैक्शनल हो सकता है। क्योंकि जैसे डजन का फ्रैक्शन एक होल नंबर आया ना, तो मोल का फ्रैक्शन भी तो एक होली नंबर आएगा, इसलिए।
बात समझ में आई या नहीं बताइए। अब मैं बात समझ में आई? यस सर। चलिए, अगर लिख लिया, पब्लिक ने लिख लिया तो आगे बढ़े, फिर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। कैन वी मूव अहेड? यस सर। चलिए, ग्रेडेशन में थोड़ा सा और ऊपर गए, ग्रेडेशन में हम थोड़ा सा और ऊपर गए। हाँ भाई श्लोक, क्या सवाल है, जरा देखिए, सवाल पढ़िए। सर, N2 gas plus 3 H2 gas reacts and form 2 NH3 in gas. 50 grams of N2 gas and 10 grams of H2 gas are mixed to produce NH3. Identify the limiting reagent, if any. Second, calculate amount of ammonia formed. Third, calculate amount of excess reagent, if any. हाँ सर, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। बस इस बार मैंने गेम ये रखा है कि मॉलिक्यूल्स ना देख के क्या रखा है, 10 ग्राम 50 ग्राम ये सब, ताकि आपको थोड़ा सा वही ग्राम के टर्म में सोच के सवाल करना पड़े। अप्रोच वही वाली अपनाइएगा जो पिछली वाली करी थी। जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है सर? यस सर। करिए, जल्दी से बताइए। बाकी लोग भी कर रहे हैं, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या नहीं बताइए। यस सर, कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। डन। चलिए चलिए, बाकी लोग भी जरा कर लें, 1 मिनट का और टाइम दिया जाए, बाकी लोग भी कर लें। सर डन। चलिए चलिए, वेरी गुड। हाँ भाई, लक्षिता हुआ क्वेश्चन? लक्षिता बताइए, लक्षिता। श्लोक यस हो सर, गया? कर रहे हैं।
श्लोक आंसर आया? सर लास्ट पर रह गया बस। चल श्रेया दुबे बताइए। श्रेया दुबे, can you hear me? Yes, sir. Now I can hear you. Okay, great. बताइए मैम कैसे होगा, बताइए बताइए मैम। चलिए भाई देखते हैं। प्रत्यक्ष गुप्ता, सवाल समझ में आ रहा है सर? प्रत्यक्ष आवाज आ रही है मेरी या नहीं? प्रत्यक्ष, कैन यू हियर मी और नॉट? अभय आवाज आ रही है? यस सर। अभय क्या कैसे होगा, हुआ सवाल या नहीं? यस सर, डन। चलिए डन, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन को कैसे करें। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले तो वही मॉलिक्यूल वाला समझेंगे, मॉलिक्यूल वाला कि वन मॉलिक्यूल। चलिए पहले आंसर बताइए आप लोग, तभी मैं सॉल्यूशन दूंगा। आंसर बताइए। दृश्या, टेल मी द आंसर प्लीज। दृश्या, कैन यू हियर मी और नॉट? मयंक बताइए भाई आंसर क्या है। मयंक आवाज आ रही है? वाह भाई वाह, लोग बोल ही नहीं रहे। सर बताएं? हाँ बताइए बताइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। ठीक। सर अमाउंट ऑफ अमोनिया इज 50.6 ग्राम्स। अच्छा। एंड सर लिमिटेड सर एक्सेसिव रिएजेंट का 3.4 ग्राम्स। 3.4 ग्राम। कौन है एक्सेस रिएजेंट? सर ये नाइट्रोजन। आइए देखते हैं। ये देखिए, हम ऐसे काम करते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल N2 था, उसको 3 मॉलिक्यूल H2 चाहिए, 2 मॉलिक्यूल दे रहे थे। तो अगर मैं मान लीजिए कि हमें तो ऐसे दे रखा था 15 मॉलिक्यूल और 50, तो फिर यहाँ पर ये कितने बनेंगे, क्योंकि 50 ग्राम्स है और 10 ग्राम्स है, तो हम वही वाली अप्रोच लेके चल रहे थे। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। बैलेंस्ड इक्वेशन से हमको सवाल करना है 20, ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। N2 के 1 मोल का मैं आई कैन से 1 मोल ऑफ N2 combined with 3 मोल ऑफ H2 to give me 2 मोल ऑफ NH3। ये बोल सकता हूं मैं या नहीं? हाँ भाई दृश्य बताइए, ये बोल सकते हैं या नहीं? जी सर। ठीक। अब मैम 1 मोल N2 का मास कितना होता है? 28। 28 क्या? सर 28 ग्राम्स पर मोल। वेरी गुड, 28 ग्राम ही लिख दे रहा हूँ। 3 मोल H2 का कुल मिला के मास कितना होगा मैम बताइए? 6 ग्राम्स। वेरी गुड 6 ग्राम्स। 6 ग्राम, आई कैन से 6 ग्राम। वेरी गुड, 6 ग्राम्स। सर और मैम 2 मोल, हाँ बताइए बताइए। सर वो थोड़ी करेक्शन थी सर, अमोनिया का जो अमाउंट आ रहा है वो 56.6 है। सॉरी हमने 50.6 बोल दिया था। चलिए ठीक है, अभी देख लेंगे। ठीक है, अमोनिया कितनी बनेगी मैम यहाँ? 34। वेरी गुड, 34 ग्राम। तो यहीं से अगर मैं अपना सवाल इधर देखिए आगे ले जाऊं कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स यानी 28 ग्राम ऑफ N2, 3 मोल H2 यानी 6 ग्राम ऑफ H2, 2 मोल्स अमोनिया यानी 34 ग्राम ऑफ NH3। आई कैन से दिस और नॉट? बताइए। यस सर।
तो अब अगर मैं 28 से डिवाइड कर दूं, मैम 28 से डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम N2 हो जाएगा, जिसको आवश्यकता होगी 6/28 ग्राम H2 की, और ये कितना बनाएगा 34/28 ग्राम NH3, है कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 ग्राम N2 को चाहिए 6/28 इंटू 50 ग्राम H2, और फिर ये उसी के प्रपोर्शन में 34/28 इंटू 50 ग्राम NH3 ये बनाएगा। सर ये आ जाएगा 60.71। हाँ, अब देखिए, नहीं, अभी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि 10.71 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। क्या मुझे ये बताइए कि इतनी हाइड्रोजन है भी? नहीं सर, 10 ग्राम से बस 10 ग्राम है। तो अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर केवल 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो उतनी हाइड्रोजन तो रिएक्ट ही नहीं करेगी, सिर्फ 10 ग्राम की रिएक्ट करेगी, तो 50 ग्राम N2 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जो N2 रिएक्ट करेगा वो लेस देन 50 होगा। यस सर। क्योंकि 50 ग्राम तो तब करता ना रिएक्ट जब हाइड्रोजन कितनी होती? सर 10 ग्राम। 10, ये 10 लिखा हुआ है सर 10.7 ग्राम्स होती तो रिएक्ट। हाँ, तो अब जब 10.71 ग्राम तो है नहीं, हमने तो हाइड्रोजन जो ली हुई है वो कितनी ली हुई है? सवाल में ही शुरू में ही दिया हुआ हाइड्रोजन तो टोटल ली हुई है, कितनी ली हुई है? 10 ग्राम्स ऑफ H2। तो एज अ कंसिक्वेंस पूरे 50 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करने वाला है। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। सर फिर वो लिमिटिंग हो जाएगा। हाँ, अब ये देखिए, ये डेड एंड सोल्यूशन था। सही सोल्यूशन क्या है? मुझे जो लिमिटिंग है उसी के टर्म में बात करना सीखना होगा। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 34 ग्राम दे रहा है, तो मुझे तो लिमिटिंग के टर्म में बात करनी है, तो मैं इधर इसको 10 ग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले 6 से डिवाइड किया तो 28/6 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 1 ग्राम टू गिव मी 34/6 ग्राम। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 28/6 मल्टीप्लाइड बाई 10 ग्राम नाइट्रोजन, ये कंबाइन करेगा 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, तो 34/6 मल्टीप्लाइड बाई 10 ग्राम NH3 देगा। अब ये देखिए, ये 28/6 इंटू 6 ये कितना हो गया 46.6 ग्राम, जो कि कंबाइन करेगा 10 ग्राम के साथ में, और हमको ये अमोनिया कितनी मिलेगी 56.6 ग्राम। तो जो पूरा खत्म हो गया, जो पूर्णतः पूरा खत्म हो गया, वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। जो बचा रह गया वो कौन है? नाइट्रोजन। कितना बचा रह गया? 3.4 ग्राम्स। और अमोनिया कितना बना? 56.6 ग्राम्स। कितना अमोनिया बनना है वो किसने डिसाइड किया? तो बैलेंस्ड इक्वेशन। नहीं, बैलेंस ने तो, मगर वो कम बनाना, और उसको रोक किसने दिया? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन ने रोक। हाँ, तो याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए, इसको नोट डाउन करिए। जिन लोगों ने कर लिया था वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया था उसको नोट डाउन करिए। पहले मैंने गलत अप्रोच, गलत तो नहीं थी, उससे मैं ये पता लगा पाया कि वो डेड एंड सोल्यूशन था, यानी उससे हमको आंसर मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमको लिमिटिंग रिएजेंट को 10 ग्राम बनाना था, तब देखना था कि दूसरा वाला कितना कर रहा है रिएक्ट। नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम ये वाला ग्रेडेशन बढ़ा दिया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फिर लेवल थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। हाँ भाई, श्लोक तीनों पार्ट हो गए? श्लोक आवाज आ रही है? यस सर। हो गए सारे पार्ट? यस सर। चलिए, गुड। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले सवाल पे बढ़े।
डन सर। चलिए चलिए फिर से एक आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ये करिए। हाँ भाई पढ़िए। रिचा पांडे, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। Assume that 4 grams of iodine are allowed to react with 4 grams of magnesium according to the following chemical equation. Mg plus I2 gives MgI2. What is the limiting reagent in this? हाँ, जो नेसेसरी डेटा जो कि आपको दे रखा है वो ये है, मैग्नीशियम का मास 24 होता है, आयोडीन का मास 127 होता है। नाउ काइंडली सॉल्व प्लीज। भाई कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। Sir, iodine is the limiting reagent. आयोडीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए भाई देखते हैं, आयोडीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। होना चाहिए, कोई इतना वो नहीं है। देखिए बैलेंस्ड है, मोल के टाउन में देखेंगे तो बैलेंस्ड है। एक मोल मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स को कंबाइन करने के लिए कितना आयोडीन चाहिए बताइए? 254 ग्राम्स। और यहाँ हमको कितना MgI2 कितना मिलेगा बताइए? 254 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 278 ग्राम्स। अब है तो हमारे पास में 4 ही ग्राम I2, तो 4 ग्राम लाने के लिए 24 अपॉन 254 will combine with 1 gram to give me 278 upon 254। फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 ग्राम आयोडीन हो जाएगा। अब 4 ग्राम आयोडीन के साथ में कंबाइन करने के लिए इतना आपको मैग्नीशियम चाहिए। अब ये कितना है देखिए, ये है कितना देखिए, कैलकुलेशन तो है मगर देखिए ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 24 अपॉन 254, तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि
कम ही आएगा नंबर, 1 से छोटा ही आना है। तो इतनी तो हमारे 2.37 हाँ 0.37 0.38 ले लें तो इससे तो ज्यादा ही हमारे पास में, इससे तो ज्यादा ही मैग्नीशियम है। इस 0.37 या 0.38 मान लें, इससे तो ज्यादा ही मैग्नीशियम है। यस सर। तो आराम से रिएक्ट कर जाएगा। और फिर ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट फिर हमारा यही हो गया मैग्नीशियम, और एक्सेस रिएजेंट, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आयोडीन, एक्सेस रिएजेंट हो गया मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब ये देखिए, ये एक मतलब अब चीज आ रही है, अगला आर्टिकल आ रहा है, वी स्टिल हैव 15 मिनट्स एट आवर डिस्पोजल, और इसके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड, theoretical and actual yield, theoretical yield and actual yield, theoretical yield and actual yield। ये देखिए ये क्या चीज है, theoretical yield and actual yield, what do you mean by this? theoretical yield actual yield ये होता है कि ये देखिए एक हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना, हमें शॉर्ट में लिखना है। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड किसे कहते हैं, ये देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए भाई, व्हाट डू मीन बाय थ्योरेटिकल यील्ड? The theoretical yield of a reaction जोर is से पढ़िए calculated. प्लीज। The theoretical yield of a reaction is calculated amount of a product that can be obtained from a given amount of a reactant according to the chemical equation. ठीक, राइट। और एक्चुअल यील्ड क्या है? The actual yield is the amount of product that we finally obtained. ठीक, एक्चुअल यील्ड ये है कि जो फाइनली ऑब्टेन हो रहा है, थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि जो ऑब्टेन होना चाहिए था, और एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये परसेंटेज यील्ड कहलाती है, यानी रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। अभी ये क्या चीज है, हम जो है वो क्या कहते हैं कि इसको लिखेंगे, बट अभी जिसको मैंने रेड से मार्क किया है वो थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन है, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है। तो पहले तो आप रेड और ग्रीन वाला मार्क जो किया हुआ है उसको लिखें, फिर मैंने ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है उसको भी लिखें। तीनों चीजों को जल्दी से लिखें, फिर हम इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है। लिख लेंगे भाई तो बताएंगे।
Yes, sir. चलिए भाई देखते हैं ये क्या चीज है। सपोज करिए कि मैं 3 आवर्स के लिए बुक्स के सामने रहता हूं। आई एम इन फ्रंट ऑफ बुक्स इन माई स्टडी, ऑन माई स्टडी टेबल for 3 hours. I'm in front of books for 3 hours. मैं 3 घंटे के लिए किताबों के सामने हूं, बट उन 3 घंटों में मैं 1 घंटा 1 आवर ही सिर्फ स्टडी कर रहा हूं और बाकी 2 आवर या तो मैं मोबाइल में लगा हुआ हूं या फिर मैं ऐसा ही रैंडमली कुछ और काम कर रहा हूं या मेरा मन नहीं है पढ़ाई का। तो मैं थियोरेटिकली तो मैं बताइए कितनी देर बुक्स के सामने रहा। थियोरेटिकली मैं किताबों के सामने कितनी देर रहा, थियोरेटिकली बताइए। थियोरेटिकली मैं 3 आवर्स, बट एक्चुअल में मैंने पढ़ाई कितनी देर करी, 1 hour. पढ़ाई कितनी देर करी, 1 आवर। तो अगर मेरी परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, यील्ड का मतलब होता है उपज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड होगा प्रोडक्टिविटी। यार तुम कितने प्रोडक्टिव थे। तो अगर मैं यील्ड की बात करूंगा कि परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल। तो एक्चुअल में मैंने कितनी देर, और परसेंटेज निकालनी है तो नेचुरल सा रूल है कि यार 100 से मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअल में मैंने कितनी देर पढ़ाई करी थी बताइए, 1 hour. 1 आवर। और थियोरेटिकली किताबों के सामने कितनी देर, 3 hours. यानी एक्चुअल पढ़ना तो 3 घंटे जाएगी, तो पढ़ा 1 ही घंटा। यानी मेरी परसेंटेज यील्ड कितनी है, प्रोडक्टिविटी 33.3%। तो वैसा ही तो यहाँ पर भी है कि ये एक्चुअल यील्ड का मतलब ये है कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट मिला। थियोरेटिकल का मतलब ये कितना मिलना चाहिए था, कितना मिल सकता था, कितना मिलना चाहिए था। हाउ मच आई वाज सपोज्ड टू गेट, एक्चुअली उस रिएक्शन से क्या मिल सकता था। तो ये उसकी परसेंटेज यील्ड है। बताइए समझ में आई बात या नहीं? यस सर। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब है वाशनी बात समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास को फिर खत्म करेंगे। एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई श्रेया दुबे क्वेश्चन पढ़िए। अभी मैं रुकिए थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए। ओके सर। ये सब हटा दूं, ये सब हिंट्स थे, तो हिंट्स की तो अभी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप पहले खुद से सवाल करें। जी मैम क्वेश्चन पढ़िए। लाइक द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। MnO2 plus 4HCl is equal to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. When 2 moles of MnO2 reacted with 4 moles of HCl, 11.2 liters of Cl2 was collected at NTP. Percentage yield of Cl2.
फिर ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए। Actual yield upon theoretical yield into 100. तब डायरेक्ट मैंने एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, करने की कोशिश कीजिए। सर 50% आ रही है। फिफ्टी परसेंट, चलिए भाई देखते हैं 50%, बाकी लोग भी तो करें। सर 50% 50% ही आ रहा है। चलिए एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100 कैसे करना होगा, क्या चीज है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। लाइक दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बाकी लोग भी करें भाई, अभी तक तो रिस्पांस कंप्लीट आया भी नहीं, किसी ने 50 बोला। दीपाली आंसर बताइए प्लीज। दृश्य आंसर प्लीज। सर 50% आ रहा है। 50% आ रहा, कैसे दीपाली 50 कैसे आया? क्योंकि सर हमें दे रखा है कि 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन बना है एनटीपी पे, और 1 मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं, तो एक्चुअल में 22.4 बनना था, लेकिन बना है 11.2। तो 11.2 अपॉन 22.4 इंटू 100 करके 50% आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए पहले तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में आपने, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी बिना सोचे समझे हुए, और मैंने इनको पकड़ लिया। मैम आप ये कह रही हैं कि एक्चुअल में 1 मोल बनना चाहिए था, एक्चुअल में 1 मोल बनना चाहिए था, ये किस बेसिस पे बोला मैम आपने? ये किस बेसिस पे बोला, बताइए 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 बताइए। हाँ भाई श्लोक, एक्चुअल में कितना बनना चाहिए था? एक्चुअल में 1 मोल ही बनना चाहिए था। एक्चुअल में 1 मोल बनना चाहिए था, क्यों, ये किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? क्योंकि सर HCl सर लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक सर, सर 4 मोल HCl दे रखा है, और सर 4 मोल HCl से 1 मोल Cl2 बन रहा है। ठीक, देखिए 4 मोल HCl को कंबाइन करना चाहिए था 1 मोल MnO2 के साथ में, है ना? यस सर। ठीक, अब 4 मोल HCl को 1 मोल MnO2 के साथ में कंबाइन करना चाहिए था, मगर MnO2 दे कितना रखा है? 2 मोल। 2 मोल। तो अब यहीं से हमको पता चल गया कि भाई MnO2 एक्सेस में है और HCl लिमिटिंग रिएजेंट है ना? यस सर। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वही डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये दीपाली ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ MnO2 react 1 मोल ऑफ MnO2 excess reagent। हाँ, 1 मोल MnO2 तो रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल MnO2 ये रिमेनिंग रह जाएगा, बचा रह जाएगा, क्योंकि इसके रिएक्ट करने के लिए HCl है ही नहीं। यस सर। तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कौन डिटरमाइन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट HCl। लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था? 1 मोल का मतलब कितना बनना चाहिए था? 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर। ठीक, मगर बना कितना? 11.2 लीटर्स, यानी कि आधा मोल, यानी कि आधा मोल। तो बनना चाहिए था 1 मोल, बन रहा है आधा मोल। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, यस सर। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए MnO2 4HCl, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो 2 मोल 4 मोल के साथ में रिएक्ट दे रखे हैं, ये गिवन है।
तो इसके 1 मोल रिमेनिंग हो गया, ये पूरा 4 मोल फिनिश्ड हो गया, ये इसका 1 मोल बनना चाहिए, इसके 2 मोल बनने चाहिए, इसके 1 मोल बनने चाहिए, 22.4 लीटर, बट एक्चुअल वॉल्यूम इज 11.2 लीटर एट एनटीपी। इसका मतलब इट मींस 0.4 मोल ऑफ Cl2 ही बना होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. वाली बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। चलिए, तो यानी परसेंटेज यील्ड जिसको हम बोल रहे हैं, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, वो क्या हुई 0.5। आप मोल बनने चाहिए थे 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी आंसर कितना हो गया 50%। 50%, तो आंसर कितना होगा 50%। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अभी बस मैं एक इसकी डीपीपी भेजूंगा, डीपीपी करिएगा परसेंटेज यील्ड वाली और लिमिटिंग रिएजेंट वाली, ठीक है? यस सर। चलिए, ओके, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हम आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे और सवाल भी करेंगे। तो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर नंबर 14 में, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you everyone.